ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس کو عبرتناک شکست مل گئی۔ نیشنل اسپتال ملتان کے 22 ڈاکٹرز نے کرونا کو مات دے دی۔ دوبارہ ٹیسٹ میں رپورٹ نیگیٹو آنے پر ڈاکٹرز کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ کہروڑ پکا میں تبلیغی جماعت کے 83 افراد کے رزلٹ نیگیٹو آنے پر گھر بھیج دیا گیا۔ ادھر رحیم یار خان میں 3 مریضوں کی پہلی رپورٹ ہی منفی آ گئی۔ اسپتال ملتان سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ 22 ڈاکٹرز نے کورونا کو شکست دے دی ہے۔ پی ایم اے ملتان کے مطابق نشتر اسپتال کے 27 ڈاکٹرز میں سے 22 ڈاکٹرز کی دوبارہ کروائی گئی پہلی رپورٹ نیگیٹو آئی ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران دوبارہ رپورٹ نیگیٹو آنے پر ڈاکٹرز کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ 3 ڈاکٹرز کو پہلے ہی ڈسچارج کیا جا چکا ہے۔ خان میں بھی شہریوں نے کورونا وائرس کو شکست دینا شروع کر دی۔ رحیم یار خان میں زیر علاج کورونا وائرس کے مثبت مریض تیزی سے صحت مند ہو رہے ہیں۔ اپنی صحت مندی اور قرنطینہ کے دن مکمل ہونے پر 18 مثبت مریضوں کا پہلا نمونہ لاہور ٹیسٹ کے لیے بھجوایا گیا تھا، جن میں 3 کی رپورٹ موصول ہو چکی ہے اور ان تینوں کا پہلا ٹیسٹ ہی منفی نکلا ہے۔ 15 مریضوں کے ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ منفی رزلٹ آنے والے مریضوں کا دوسرا نمونہ 72 گھنٹے بعد بھجوا دیا جائے گا۔ دوسرا نمونہ منفی آنے پر مریضوں کو گھر بھجوا دیا جائے گا۔ رحیم یار خان میں موجود مزید 29 تبلیغی جماعت کے افراد کے نمونے منفی آ چکے ہیں۔ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے 783 افراد کے نمونے کورونا ٹیسٹ کے لیے بھجوائے گئے تھے، جن میں سے 345 افراد کی رپورٹ منفی اور 378 کی رپورٹ کا بھی انتظار ہے۔ اب تک 693 افراد کے کورونا وائرس کے نمونے منفی آ چکے ہیں اور ان میں تبلیغی جماعت اور کورونا وائرس سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ کہروڑ پکا سے اچھی خبر ہے، جہاں تبلیغی جماعت کے 83 افراد کے رزلٹ نیگیٹو آنے پر انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ تمام افراد کو 14 دن کوارنٹین پیریڈ مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ 83 افراد کا تعلق ملک کے مختلف علاقوں سے ہے۔ نیگیٹو 83 افراد کو میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کر اپنے علاقوں کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ تمام تبلیغی افراد کو 14 دن کوارنٹین پیریڈ مکمل کرنے کے بعد روانہ کیا گیا۔ تبلیغی جماعت کے زیادہ تر افراد کا تعلق کراچی، سندھ اور KPK سے تھا۔ قافلوں کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے روانہ کیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل خوشخبری، وزیر اعظم عمران خان کا ماہ مقدس میں مساجد کھلی رکھنے کا فیصلہ آئندہ جمعہ یوم توبہ کے طور پر منایا جائے گا۔ علماء کرام نے بھی آئندہ جمعہ پر یوم توبہ اور یوم رحمت منانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام علماء اور خطیبوں کی دادرسی بھی کی جائے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان سے پیر امین الحسنات شاہ، پیر شمس الامین، پیر نقیب الرحمان، مولانا محمد حنیف جالندری اور طاہر اشرفی سمیت دیگر علماء اکرام کے وفد نے ملاقات کی۔ اجلاس میں رمضان المبارک میں مساجد کھلی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام علماء اور خطیبوں کی داد رسی بھی ہوگی۔ جنرل سیکرٹری وفاق المدارس قاری حنیف جالندری نے کہا، وزیر اعظم نے مطالبات منظوری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ حکومتی SOPs پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ جمعے کو یوم توبہ کے طور پر منایا جائے گا۔ آنے والا جمعۃ المبارک یوم توبہ، استغفار، رحمت بھی ہوگا، بلکہ رمضان سے پہلے اور پورا مہینہ ہم قوم سے اپیل کریں گے کہ وہ توبہ، استغفار، رجوع اللہ کا اہتمام کرے تاکہ یہ بلائیں ٹل جائیں۔ مفتی جاوید مصطفیٰ نے کہا کہ فیصلہ قابل تحسین ہے۔ نمازی وضو گھر سے کر کے آئیں۔ علماء اکرام کو چاہیے کہ وہ SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ یہ الحمدللہ حکومت کا اور علماء کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے۔ اب علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور احتیاط کے ساتھ مساجد میں نمازیوں کو سہولیات میسر کریں۔ علماء اکرام کا کہنا تھا کہ شہری رمضان میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی چشتیاں آمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے قرنطینہ سینٹر اور احساس کفالت سینٹر کا دورہ کیا اور سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ قاسم علی شیخ کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا چشتیاں پہنچنے پر ممبران اسمبلی اور اعلیٰ افسران نے استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دانی اسکول میں قرنطینہ سینٹر کے جائزہ کے بعد THQ ہاسپٹل چشتیاں کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کورونا آئسولیشن وارڈ میں انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج میں قائم احساس کفالت سینٹر پہنچے۔ مستحق خواتین سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اور سہولیات کی دستیابی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ احساس کفالت سینٹر میں معذور نوجوان نے وزیر اعلیٰ کی گاڑی روک کر نوکری کی فریاد کر دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ادھر چشتیہ شریف میں آئے تھے، مجھے ملے تھے۔ میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں،
اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو جاب دی جائے گی، نوکری دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے معذور نوجوان کی داد رسی کرتے ہوئے اسے 7 روز میں نوکری دینے کا وعدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دانش اسکول میں پودا بھی لگایا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے دانش اسکول میں اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ چشتیاں سمیت بہاول نگر میں صحت کی سہولتوں کے لیے ضروری وسائل فراہم کریں گے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے گندم کی خریداری مہم اور کورونا کی صورتحال سے متعلق بریفنگ دی۔ قاسم علی شیخ، روہی، بہاول نگر۔ کورونا وائرس کی بات کریں گے، جس کے خدشات کے باعث ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کورونا فیلڈ اسپتال قائم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا۔ بین الاقوامی طرز کا جدید سہولیات سے لیس فیلڈ اسپتال 100 بیڈز پر مشتمل ہوگا۔ ملتان کی انتظامیہ کی جانب سے کورونا کے خدشات کے باعث ہنگامی طور پر فیلڈ اسپتال قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فیلڈ اسپتال 100 بیڈز پر مشتمل ہوگا۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے زرعی یونیورسٹی گرلز ہاسٹل کی صفائی دھلائی کا کام مکمل کر لیا۔ کورونا فیلڈ اسپتال کے قیام کے لیے کام شروع کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر منور عباس بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے کہا کہ کورونا فیلڈ اسپتال بین الاقوامی طرز پر ہوگا۔ اسپتال میں تمام جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ فیلڈ اسپتال میں مریضوں کو کھانا اور دیگر سہولیات بھی مفت فراہم کی جائیں گی۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر منور عباس نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کورونا فیلڈ اسپتال میں ریسیپشن، رجسٹریشن اور اسکریننگ کے لیے کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے۔ فیلڈ اسپتال میں ٹرائی ایج روم قائم کیا جائے گا۔ مریضوں کی طبی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے گرین، یلو اور ریڈ او پی ڈی روم قائم کیے جائیں گے۔ کورونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کا علاج معالجہ فیلڈ اسپتال میں کیا جائے گا۔ کورونا وائرس کے مریض کوارنٹین پیریڈ بھی فیلڈ اسپتال میں مکمل کریں گے۔ کسی مریض کی حالت تشویشناک ہونے پر اسے نشتر اسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں بایو سیفٹی 3 لیب فعال نہ ہونے سے شہری کورونا کے ٹیسٹ کرانے سے محروم ہو گئے۔ ڈی سی نے لیب کی تاخیر پر نوٹس لیتے ہوئے اسے آئندہ 3 روز میں مکمل کرنے کی ہدایات کر دی ہیں۔ سول اسپتال میں قائم ہونے والی بایو سیفٹی لیب 3 ڈیڈ لائن آ جانے کے باوجود مکمل نہ ہو سکی۔ حکومت نے کورونا کے ٹیسٹ کرنے کے لیے بہاولپور میں خصوصی لیب بنانے کی ہدایت کی تھی۔ لیب نے 20 تاریخ سے فعال ہو کر کورونا مشتبہ افراد کے ٹیسٹ کرنے تھے۔ ڈی سی شوسف سعید نے لیب مکمل نہ ہونے پر مزید 3 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ لیب کو 3 دن میں مکمل کر کے اس کے تمام شعبوں کو فعال کیا جائے۔ لیب میں چینجنگ روم، ڈس انفیکشن روم، اسکرب روم خصوصی طور پر بنائے جائیں گے۔ لیب میں BS2 اور HINI PCRs پیتھولوجیکل ٹیسٹ فوری طور پر ہو سکیں گے۔ لیب کے لیے 100 kV کا جنریٹر بھی لگایا جائے گا، جس سے کام متاثر نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ملتان میں کورونا وائرس لاک ڈاؤن سے کروڑوں روپے کا ریونیو دینے والی ٹمبر مارکیٹ ویران پڑی ہے۔ لکڑی کے کاروبار سے وابستہ افراد بھی مشکلات سے دوچار ہیں، یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاک ڈاؤن سے ٹمبر مارکیٹ ویران، لکڑی کے کاروبار سے وابستہ افراد مشکلات سے دوچار ہیں۔ کروڑوں روپے کا ریونیو دینے والی لکڑ منڈی میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ مشکل ہو رہی ہے، کاروبار روز کے کمانے والے ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی نہیں ہو رہا گزارا، بڑی مشکل ہو رہا ہے۔ جنوب پنجاب کی سب سے بڑی ٹمبر مارکیٹ بند ہونے سے 30,000 سے زائد مزدور بے روزگار بھی ہو چکے ہیں۔ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر دکاندار بند ہے۔ مزدور دیہڑی دار طبقہ ہے، یہاں پہ 600 روپیہ 700 روپیہ دیہڑی ہے، وہ اپنے کام سے بھی گیا، سڑکوں پہ کھڑے ہیں، بھیک مانگنے والا ان کا حال ہویا ہوا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے کاروبار کرنے کی اجازت دے تاکہ دیہڑی دار مزدوروں کا روزگار بحال ہو سکے۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ بہاولپور سمیت پورے سرائے کے وسیب میں جاری گندم کی کٹائی کا عمل بارشوں کی وجہ سے شدید متاثر ہوا ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گندم میں تاخیر کی وجہ سے کپاس کی بروقت کاشت بھی متاثر ہوگی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے اطہر لاشاری۔ سرائے کی وسیب میں جاری گندم کی کٹائی اور تھریشنگ کا عمل بارشوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بہاولپور اور اس کے گرد و نواح میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے، جس کی وجہ سے گندم کے کاشتکار شدید پریشان ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے رات بارش آ گئی، تھریشر لئیے رات کو 9 بجے شروع کی تھی، سویرے 5 بجے کو سارا 10,000 کا تیل بال کے 3 ایکڑ نکلیے، ہونی بڑے پریشان ہے۔ دانے منڈی چاہتے ہوئے یا سینٹر دے واتے ہیں سنے نہیں سکا دے نو ای کر دے نو بہت پریشان ہے بھی واسطے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گندم کے بعد کپاس کی بجائی بھی تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ نمی والی گندم کی تھریشنگ کرنے سے جہاں اس کی پیداوار متاثر ہوتی ہے، وہیں گندم کی فروخت بھی متاثر ہوتی ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ رکنے سے ہی انہیں سال کی محنت اور گھر کا اناج مل سکے گا۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔
मजीद आपको बताएं कि रहीम मियां खान में इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सीनियर इंस्ट्रक्टर जमीलुर रहमान कहते हैं कि जिला भर में 70% गंदम की कटाई हो गई है। अगर गुज़श्ता रात की तरह मजीद बारिश हुई तो गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचेगा। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम मियां खान में गुज़श्ता रात की बारिश जहां शहरियों के लिए लॉकडाउन में खुशी का बाइस बनी तो वहीं किसानों के लिए जहमत बन गई। इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सीनियर इंस्ट्रक्टर और ज़राई माहिर जमीलुर रहमान कहते हैं कि आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिश और हवाओं के चलने से गंदम की फसल मुतासिर होगी। किसान बारिश होने की सूरत में गंदम की कटाई रोक दें। किसान कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ना भूलें। जो मौजूदा बारिश हुई है ये हल्की बारिश है, इससे एक दिन दो दिन जो है वो जो कटाई है वो लेट हो सकती है और गहाई भी लेट हो सकती है। अगर मजीद बारिशें होंगी तो उससे ये चांस है कि जो गंदम है उसकी कटाई और गहाई लेट हो जाएगी और जो गंदम खड़ी है अगर साथ तेज़ हवाएं चलती हैं तो लॉजिंग भी हो सकती है और जो गंदम का वैसे जो है नुकसान हो सकता है। ज़राई माहिरीन जमील रहमान कहते हैं कि किसान ज़राई माहिरीन के मशवरे पर अमल करते हुए मौसमी सूरत हाल में गंदम की कटाई और खाई का अमल जारी रखें ताकि गंदम की फीकर पैदावार मुतासिर न हो। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम मियां खान। मुल्तान और इसके गिरदनवाह में गुज़िश्ता दिनों से वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 25 अप्रैल तक जनूबी पंजाब में बूंदाबांदी की पेशगोई की गई है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी जानिब गंदम की सैकड़ों एकड़ तैयार फसल को बारिश से नुकसान पहुंचने का खतरा है क्योंकि गंदम की कटाई का अमल भी शुरू कर दिया गया है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से पेशनगोई की गई है कि 25 अप्रैल तक मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। हम काश्तकारों को यही कह रहे हैं कि जैसे मौसम खुलता है इसकी कटाई करें। महकमा मौसमियात की पेशगोई जो है ना उसे मद्देनजर रखें। तर्जमान महकमा ज़राअत का कहना है कि बारिश की वजह से गंदम की दानों में नमी का खदशा है। काश्तकारों को रोजाना की बुनियाद पर फसल की कटाई शुरू कर देनी चाहिए। कटाई के बाद खिलियां ऊंची जगह और कंबाइन हार्वेस्टर इस्तेमाल किया जाए। फसलों में पानी के निकास का इंतजाम और भरियां बांधते वक्त सिट्टू का रुख एक तरफ रखें। हम ये कहते हैं कि इसके गुट्ठे या भरियां छोटी बांधें और खलियान जो है वो ऊंची जगह पर बनाएं और मरलियां छोटी रखें और रेस्ड बेड ऊंची जगह पे रखें। अगर खुदा न खास्ता बारिश होती है तो पानी उसके नीचे ना खड़ा हो। गंदम की फसल कटाई की ताखीर का शिकार होने से दीगर फसलों की काश्त में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। और बहावलपुर के काश्तकारों की जानिब से कोरोना के दिनों में गंदम की कटाई और थ्रेशिंग का अमल जारी है। थ्रेशिंग के जरिए काश्तकार भूसा और गंदम हासिल करते हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। बहावलपुर में गंदम की कटाई के बाद थ्रेशिंग शुरू हो गई है। काश्तकारों की जानिब से कोरोना के बावजूद गंदम की थ्रेशिंग का अमल जारी है। कटाई और थ्रेशिंग के जरिए काश्तकार गंदम और जानवरों की खुराक भूसा हासिल करते हैं। गंदम साल की जो पूरे मुल्क की हर इंसान के लिए रोजी है, इसको संभालना लॉकडाउन में गवर्नमेंट की मशरूत इजाजत से हम इसको इस दौरान काम कर रहे हैं। गंदम भी तैयार हो रही है जो पूरे मुल्क के लिए भी तैयार हो रही है, हर इंसान ने खाना है, और भूसा तैयार हो रहा है जिससे हमारे जानवरों का पेट पलता है और हम दूध गोश्त तैयार करते हैं। जैसे किसानों का कहना था कि कोरोना के बायस वो बहुत परेशान हैं, इन्हें वो अफरादी कुव्वत नहीं मिल रही जिसके बायस जल्द काम हो जाता था। अब कोरोना से बचाव के लिए SOPs इख्तियार करते हुए गंदम की कटाई और थ्रेशिंग कर रहे हैं। बिल्कुल एहतियाती तदबीर इख्तियार किए हैं और ये लॉकडाउन की वजह से एहतियाती तदबीर करनी पड़े क्योंकि कोरोना वायरस आया हुआ, इसकी वजह से देखे मास्क लगाया हुआ मैंने। पंजाब भर में इन दिनों हर जगह कटाई के बाद थ्रेशिंग का अमल शुरू होता है। किसान दिन रात मेहनत करके साल भर का अनाज जमा करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। लिया से खबर है जहां इंतजामी अफसरों और मेंबरान असम्बली के गंदम खरीदारी मराकज के दौरे जारी हैं। MNA शहाबुद्दीन अहमद अली, डिप्टी कमिश्नर और DPO ने फूड सेंटर का विजिट किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लिया में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। गंदम खरीदारी मराकज पर काश्तकारों को सहूलियात मुहैया करने के लिए इंतजामिया और मेंबरान असम्बली के दौरे मुसलसल जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़ियाद, DPO हसन इकबाल, MPA शहाबुद्दीन और मलिक अहमद अली ने फूड सेंटर करोड़ का विजिट किया। MPA शहाबुद्दीन और मलिक अहमद अली का कहना था कि पंजाब हुकूमत काश्तकारों को फूड सेंटर पर भरपूर सहूलियात पहुँचा रही है। फूड सेंटर करोड़ लालीसन, इसमें बेहतर इंतजामात हैं और इंशाअल्लाह ये पहली दफ़ा हो रहा है कि PTI की गवर्नमेंट ने इतना किसान की सहूलत के लिए 1400 रुपये फी मन और 100 बोरी गरीब काश्तकार को उसी वक्त
बगैर टैक्स के कटौती के उसकी पेमेंट बैंक से उसी वक्त मिल जाएगी। पहले जब 24 लाख 30 लाख तक 35 लाख तक टारगेट होता था गन्ना खरीदारी का पूरे पंजाब का, इस मरतबा हुकूमत ने बड़ी मेहरबानी की है काश्तकारों के लिए, उनको ओपन कर दिया है और यहाँ तक भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया है कि 70-80 लाख तक भी हम खरीदारी कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने सेंटर पर काश्तकारोों को पीने के पानी, साया, कुर्सियों और कोरोना वबा से बचाव के लिए हैंड वाशिंग सहूलियात का जायजा लिया। डीपीओ हसन इकबाल का कहना था कि गंदम खरीदारी मराकज पर सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। मुनासिब ड्यूटी लगाई गई है और उसके साथ जैसी रश बढ़ेगा इंशाल्लाह उसकी ड्यूटी को हम ऐड कर देंगे। फिलहाल इट इज सेटिस्फैक्टरी। दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़, डीएसपी करोड़ समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जाहिर सरफराज, रोही, लिया। और जनूबी पंजाब में महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स का कोटा बंद और नई गंदम की खरीदारी समेत बैनुल अजलाई नकलो हमल पर पाबंदी आयद करने का मामला। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब चौधरी अब्दुल रऊफ मुख्तार ने आटे की किल्लत के नए बहरान का खदशा करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब चौधरी अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। पंजाब में 926 फ्लोर मिल्स हैं। गंदम के कोटे का इजरा लाहौर और रावलपिंडी की फ्लोर मिल्स को तो किया जा रहा है, मगर यूपी पंजाब की फ्लोर मिल्स का गंदम कोटा बंद है। फ्लोर मिल्स सरकारी कोटे के साथ अपनी गंदम को शामिल करके आटे की जरूरत को पूरी करते हैं। फ्लोर मिलों को पंजाब गवर्नमेंट डेली बेसिस पे वीट का कोटा देती थी और मिलें चलती थी, जिसमें अब साउथ पंजाब में उन्होंने कोटा बंद कर दिया, पिंडी और लाहौर वगैरह में कोटा दे रहे हैं। तो हमारा सिलसिला इसी तरह चलता था कि हमारे पास प्राइवेट वीट होती थी जो हम सीजन में प्रोक्योर करते थे और सारा साल उसको गवर्नमेंट कोटे के साथ मिक्स करके चलाते थे। हुकूमत की जानिब से आटे और गंदम की बैनुल अजलाई नकलो हमल की पाबंदी के बारे में चौधरी अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना है कि गुज़िश्ता रोज डेप्टी कमिश्नर बहावलपुर की जानिब से आटे की तफसील को रोका गया है। बैनुल अजलाई पाबंदी से मुल्क भर में आटे की किल्लत पैदा हो जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से 50% बारदाना की किल्लत के बाद गंदम की खरीदारी को बेजा करार दिया। इन्होंने जो पिंडी के लिए और लाहौर के लिए वीट बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट से जानी थी, डीसी बहावलपुर में उसने उसके परमिट कैंसिल कर दिए और गाड़ियां जो हैं वो स्टैंडों पे उतार ली गई। इसी तरह रहीम यार खां में भी परमिट जो हैं वो आज इशू नहीं कर रहे और यहाँ भी मुश्किलात हैं। हुकूमत की जानिब से आयद पाबंदियों की बिना पर फ्लोर मिल्स बंद होने से सूबे भर में काम करने वाले मजदूरों के घर मुतासिर हो सकते हैं। लाहौर में 2 दिन बाद फ्लोर मिल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का इजलास हो रहा है, जिसमें फ्लोर मिल मालिकान की जानिब से बड़े और सख्त फैसले भी सामने आ सकते हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान में अफसोसनाक वाकया पेश आया। बस्ती गरीब शाह का 10 साला यासिर सादिक कैनाल में गिरकर जाँ बहक हो गया। 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी लाश ना मिल सकी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान की बस्ती गरीब शाह का 10 साला मोहम्मद यासिर नहर किनारे खेल रहा था। एनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चा खेलते हुए नहर में गिर गया। शहरियों ने निकालने की कोशिशें की मगर नाकाम रहे। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी रिस्पांस करते हुए 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लेकिन लाश ना मिल सकी। बच्चे की उम्र 10 साल है, नाम यासिर है और ये बच्चे इधर नहा रहे थे, ये खेल रहे थे और ये बच्चा डूब गया है। तकरीबन 1 घंटा हो गया है बच्चे को डूबे हुए। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी बच्चा मिल जाएगा। रेस्क्यू इंसिडेंट कमांडर उमर दराज का कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन कल दोबारा शुरू किया जाएगा। उम्मीद है कि बच्चे की डेड बॉडी नहर से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। और बर्न यूनिट में मरीजों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान बैतुल माल और इटालियन बर्न यूनिट के माबैन मुस्तहिक मरीजों के इलाज के हवाले से MOU पर दस्तखत हो गए। बिलाल न्याजी की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब में वाहिद इटालियन बर्न यूनिट के मरीजों के लिए अच्छी खबर आ गई। बैतुल माल के ताउन से अब गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। इस हवाले से बर्न यूनिट में तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ बर्न यूनिट हुक्काम और पाकिस्तान बैतुल माल के MD ओन अब्बास बप्पी की जानिब से मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। हुक्काम का कहना है कि मुआहिदे से गरीब और मुस्तहिक मरीजों को फायदा होगा। जनूबी पंजाब के हमारे पेशेंट्स हैं, जब कभी आएंगे कम से कम उनको ये परेशानी नहीं होगी कि अगर वहाँ पे जाएं और अगर हमारे पास पैसे ना हुए तो हमारा इलाज कहाँ, तो बैतुल माल इटालियन बर्न सेंटर को सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर ओन अब्बास बप्पी का कहना था कि बर्न यूनिट जनूबी पंजाब के 11 अजला की खिदमत कर रहा है। आज का MOU जनूबी पंजाब के मरीजों के लिए तोहफा है। ओन अब्बास बप्पी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान बैतुल माल गरीब मरीजों की मदद कर रहा है। अगले साल के लिए बर्न यूनिट के लिए बजट मुख्तस कर रहे हैं। एसिड बर्न सर्जरी और दीगर बर्न यूनिट के मरीजों के हवाले से पाकिस्तान बैतुल माल फंड करेगा।
चाहे वो कैंसर की जो डैमेजेस होते हैं सेल उसकी वजह से होगी, चाहे वो आग के जलने की वजह से उनकी जो डिफेक्ट आएगा उनके जिस्म के ऊपर, या एसिड बर्न की वजह से उनको जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका बाकायदा एक पैकेज बना लेंगे। और जो गरीब पेशेंट्स यहाँ पाकिस्तान इटालियन बर्न सेंटर में अपनी सर्जरी के लिए आया करेंगे, पाकिस्तान बैतुल माल उनको फुली फंडेड करेगा। बर्न यूनिट हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर ओन अब्बास बप्पी को एजाजी शील्ड भी दी गई। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। सोशल वेलफेयर जिले बैतुल माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद के चेक तकसीम कर दिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौजूदा हालात में सोशल वेलफेयर बैतुल माल फलाही कामों में पेश है। सोशल वेलफेयर जिले बैतुल माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद फ्राहम कर दी गई। जिले बैतुल माल कमेटी के चेयरमैन मलिक एजाज रा, MPA मलिक वासिफ रा, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक यूनस वेस और मेंबर बैतुल माल कमेटी शाहिद महमूद ने मुस्तहिकीन को चेक तकसीम किए। ये हमने फॉर्म आज से शुरू किए हैं, तो ये आज भी चलेगा, कल भी और परसों भी ये सिलसिला चलता रहेगा। आज भी कम अज़ कम ये इसको कोरोना को मलूज़ खातिर रखते हुए रशिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 30-30 बंदे 25-25 बंदे हमने किए हैं। बैतुल माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक अफराद को 4000 रुपए के इमदादी चेक दिए गए। इस दौरान समाजी फासले का भी खसूसी ख्याल रखा गया। इमदादी रकम मिलने पर मुस्तहिक अफराद ने खुशी का इजहार किया। जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं उनको माली मुआवनत के चेक जारी किए हैं और इसमें लाजमन बात है इन लोगों को रिलीफ मिलेगा और हुकूमत पंजाब का और हुकूमत पाकिस्तान का जो विजन है लोगों को रिलीफ देने के हवाले से इस लॉकडाउन के दौरान वो इंशाल्लाह जरूर पाया तकमील तक पहुंचेगा। इमदादी रकूम तकसीम करने का सिलसिला आइंदा 4 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। है कि FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान की बड़ी कार्रवाई, नादरा और इलेक्शन कमीशन से शहरियों का रिकॉर्ड चोरी करके फ्रॉड करने वाला गैंग पकड़ा गया। माहिर इमरान की रिपोर्ट। FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान की बड़ी कार्रवाई, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से शहरियों से फ्रॉड करने वाली और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई विहाड़ी में की गई। मुलजिमान नादरा और इलेक्शन कमीशन से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से शहरियों का डाटा चोरी करते थे। मुलजिमान डाटा से सिलिकॉन के अंगूठे बनाकर मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल करते थे। कि लोगों का डाटा वहां से ब्रीच हुआ और उसके ऊपर उस डाटा के ऊपर एक वो सिलिकॉन थंब बनाता था। उस सिलिकॉन थंब के ऊपर फिर वो जो है कम से कम 5 सिमें एक्टिव की जा सकती हैं। तो हमने ये कार्रवाई की और तकरीबन 4600 सिलिकॉन फेक थंब्स हमने उसे रिकवर किए हैं और इंशाल्लाह इसमें मजीद जो है अरेस्ट होना बाकी है। मुलजिमान के कब्जे से 4600 से जायद सिलिकॉन से बने जाली अंगूठे बरामद कर लिए गए। मुलजिमान जाली अंगूठों को सीमें निकलवाने, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, गैर कानूनी गेटवे, जाली जमानतों समेत मुतअद्दिद जराइम में इस्तेमाल करते थे। 4600 के करीब हम लोगों ने ये बरामद किए हैं, तकरीबन 4600 इसकी तादाद है और इसका मोस्टली इस्तेमाल एक्टिवेशन के लिए ज़्यादातर किया जाता है। इसको आपकी ग्रे ट्रैफिकिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, BISP फ्रॉड्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुलजिम के कब्जे से वोटर लिस्टें, ट्रेसिंग पेपर, सिलिकॉन शीशियां, सिम डिवाइस, लैपटॉप और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। कार्रवाई FIA डिप्टी डायरेक्टर हसन जलील की सरबराही में की गई। दूसरी जानिब अलमदार नामी मुलजिम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों और चालान का सिलसिला जारी है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिनुल मुल्क। मुल्तान में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी है। शहरी बिला जवाज घरों से निकल रहे हैं। सड़कों पर भी समाजी फासले की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस भी धड़ाधड़ चालान काट रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार कहते हैं जो खिलाफ वर्जी कर रहा है न सिर्फ उसका चालान कर रहे हैं बल्कि सवारी भी बंद की जा रही है। में को जा रहा है, कोई खास कर जैसे सामान वगैरह को परचेज के लिए है तो वो निकल के जा रहा है तो उसको इजाजत है, अदरवाइज कोई गैर जरूरी एक्टिविटी के लिए हम लोग नहीं निकलने दे रहे। मुल्तान में समाजी फासला न रखने पर दर्जनों शहरियों को धर लिया गया। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर भी जुर्माने किए गए। पकड़े जाने पर शहरी भी शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं। चालान हो गया हमारा। ठीक है। कितने लोग जा रहे थे? 2 लोग जा रहे थे हम। ठीक है। सामान लेने जा रहे थे। आइंदा के बाद तो नहीं जाएंगे? तो आइंदा नहीं जाएंगे हम। कार में 2 से ज्यादा अफराद को भी जुर्माने किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार कहते हैं खिलाफ वर्जी पर रोजाना 1000 से ज्यादा शहरियों को पकड़ा जा रहा है, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ मोहसिन मुल्क, रोही, मुल्तान। यहाँ आपको बताएं कि 12 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर समेत 70 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी श्रीलंका में फंस गए। 6 खिलाड़ियों का ताल्लुक मुल्तान रीजन से है। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानियों ने हुकूमत से उन्हें वतन वापस लाने की अपील की है।
कोरोना के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बंद हुआ तो 12 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स समेत 70 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी श्रीलंका में फंस गए। 6 खिलाड़ियों का ताल्लुक मुल्तान रीजन से है। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानियों ने हुकूमत से मुल्क वापस लाने के लिए अपील कर दी। वीडियो पैगाम में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से श्रीलंका में फंसे हुए हैं। कल श्रीलंका का अपने शहरियों को लेने जहाज पाकिस्तान आना है। श्रीलंकन इंतजामिया के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत की इजाजत से वो इन्हें ले जा सकते हैं। हुकूमत इनकी वापसी के लिए फौरी इक़दाम करे। अभी आपको बताएं कि रहीम यार खान में वजीर आज़म एहसास प्रोग्राम के दूसरे फेज में रजिस्टर्ड मजदूरों को मुश्किलात का सामना है। ये रिपोर्ट देखिए। मेहनत मजदूरी करके अपने लिए रोजगार कमाने वाले अफराद की वजीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद का हसूल भी मुश्किल हो गया। मेहनत मजदूरी और मशक्कत ने हाथों पर पड़ी लकीरें ही मिटा थीं। एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम के दूसरे फेज में इमदाद मिलने की तस्दीक की खबर के साथ एहसास सेंटर में पहुँचने वाले मजदूरों को अंगूठे की लकीरें खत्म होने की बिना पर तस्दीक के लिए नादरा ऑफिस भिजवा दिया गया। नादरा ऑफिस खुला होने के बावजूद मजदूरों और मेहनत कशों की तस्दीक करने की बजाय ये कमाई के बाद आने का कहकर वापस भिजवा दिया गया। मजदूरों का कहना था कि रोजगार न होने की बिना पर पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। नादरा की जानिब से भी उनको 10 दिन के लिए लटकाया जा रहा है। सिफारिश लेकर आने वालों के ही काम किए जा रहे हैं। चंगे चंगे बंदे अंदर वेंदे पे मेरा डाढ़ा बंदा वो वेंदा पे जरे गरीब है पीछू खड़े गए थे। हमारे को तीसरा दिन है, आज आ रहे हैं, फिंगर नहीं आ रहे। वो उन्होंने भेजा जाओ तुम इन्हें को नादरा लेकर उन्हें को लिखवाओ, तुम्हारे को पैसा मिलेगा, न तो कुछ नहीं मिलेगा। मजदूरों और मेहनत कशों ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नादरा के सलूक का नोटिस लेते हुए गरीब अफराद की आसानी के लिए तस्दीक के अमल को शफाफ बनाएं और हर एहसास सेंटर पर नादरा का काउंटर भी बनाया जाए ताकि तमाम अफराद की फौरी तौर पर तस्दीक हो सके। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अभी आपको बताएं कि कटाई के सीजन में एलर्जी और दमे के मरीजों में कमी हो गई। सरबराह शोबा अमराज सीना प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक कहते हैं लोग इस बार ज्यादा एहतियात कर रहे हैं। अथर लाशारी की रिपोर्ट। गंदम के सीजन में एलर्जी के मरीजों में सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में अस्थमा और एलर्जी के मरीजों की इंतहाई कम तादाद रिपोर्ट हो रही है। ये इस दफा जो रिलेटिवली पिछले साल के मुकाबले में कम है, उसकी चंद वजूहात ये हैं कि एक तो कोरोना की वजह से जो फैक्ट्रीज बंद हुई, जो धुआं का अखराज होता था, पोल्यूशन इन्वायरमेंटल, वो कुछ कम है, जो दमा को ज्यादा इंक्रीज करती है। दमा अंदर मौजूद है, अटैक नहीं होता। प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक ने कहा कि मरीजों की तादाद में कमी की कई वजूहात हैं। लॉकडाउन की वजह से घरों पर रहना, माहौलियाती तब्दीली और अच्छी खुराक शामिल है। लॉकडाउन में घरों में बैठे तो भी मट्टी डस्ट में नहीं जा रहे। दूसरा ये कि लोगों ने अच्छी डाइट इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोना से, तो वो बाकी चीजों के खिलाफ भी इम्यूनिटी को बढ़ा रही है। डॉक्टर आज़म मुश्ताक ने कहा कि इस मौसम में गर्दो गुबार से बचे, घरों में रहें और अपनी खुराक बेहतर बनाएं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अथर लाशारी, बहावलपुर। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन ज़ियाउल इस्लाम जाहिद ने कहा कि पीस के ज़ेर तमाम चलने वाले स्कूल्स को अदायगियां न करना काबिल मुसम्मत है। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन ज़ियाउल इस्लाम जाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि पैफ के ज़ेरे एहतमाम काम करने वाले इदारों की तादाद 7,959 है। पिछले 3 माह से हुकूमत की जानिब से वेरिफिकेशन के नाम पर फंडिंग बंद कर दी गई है। असातिज़ा को तनख्वाहें न मिलने पर उन्हें परेशानी का सामना है। पिछले 3 माह से वेरिफिकेशन के नाम के ऊपर स्कूल्स की फंडिंग बंद कर दी गई है। कोरोना की वबा जो पूरी दुनिया में लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रही है, वजीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने सनत के लिए तो 200 अरब का पैकेज का ऐलान कर दिया, लेकिन उनके एक कारकुन, उनके एक सूबाई वजीर जनाब मुराद राज साहब ने हमारे इन प्राइवेट स्कूल्स और इन पैफ स्कूल्स के असातिज़ा के लिए उनकी तनख्वाहें तक बंद कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि वजीर तालीम ने कहा पैफ स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे फेक हैं, जबकि अक्टूबर नवंबर में सरप्राइज विजिट के दौरान जो बच्चे गैर हाजिर थे उनको फेक तस्वर किया गया। उनका कहना था कि जारी करदा SOPs के मुताबिक स्कूलों में 80% तादाद 100% काउंट होगी। बहुत स्कूल ऐसे हैं जिनकी 100% कटौती कर ली गई है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब इस मामले पर तवज्जो दें और मसले को फौरी हल किया जाए। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिद इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां आमिर शहबाज का बड़ा इकदाम, हजाम के छोटे कारोबार से वाबस्ता सफेद पोश तबके को राशन दिया। मियां आमिर शहबाज का कहना था कि मजदूरों की मदद तो सब करते हैं, मगर सफेद पोश और अपनी मदद आप करने वाले तबका नजरअंदाज हो रहा था। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए।
कोरोना वायरस इमरजेंसी में मजदूर तबका तो मुतासिर हुआ। मुतासर अफराद में ऐसा तबका भी शामिल है जो छोटे कारोबार से मुंसलिक है। छोटे कारोबार से मुंसलिक सफेद पोश तबका में रेडी बान, रंग साज और ऐसे कारोबार करने वाले अफराद हैं जो रोजाना की बुनियाद पर कमा कर ही घर के अखराजात चलाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां आमिर शहबाज की जानिब से 400 से जायद हजाम की मुआशी मुश्किलात से दो चार होने पर मदद की गई। मियां आमिर शहबाज का कहना है कि मजदूरों की मदद तो हर एक ने की, मगर हमारे माशरे में सफेद पोश तबका किसी को अपनी मुश्किल बताने से घबराता है। हम तमाम जो हजाम है रहीम यार खान में, हम उनकी बाकायदा उनके घरों में राशन पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह इन 2 दिनों में। इसके बाद हम अगले कदम में रेडी वालों पे, ख़ास तौर पे रिक्शा वाले और जो बाकी लोग भी जो इस तरह के जो शोबे हैं उनको फोकस करते हुए हम उनकी मदद के लिए कोशिश करते रहे। हुजाम ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से मुश्किल वक्त में मदद करने पर शुक्रिया अदा किया। हमारे बरादरी को ये राशन भेजा है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ और उन्होंने हमेशा हमारे साथ मोहब्बत से पेश आए हैं और हमारे साथ तामन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आइंदा भी मियां आमिर शहबाज साहब हमारे साथ तामन करेंगे। मियां साहब ने मेहरबानी की है हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, हमारी कौम के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। यकीनन उन्होंने ये कोशिश की है, हमें राशन की सहूलत वगैरह दी है, राशन वगैरह तकसीम वगैरह की है। ये उनकी मेहरबानी, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनका। पूरी रहीम यार खान जेडेसर बरादरी आमिर शहबाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती है और इंशाल्लाह हम आज के बाद आमिर शहबाज साहब के साथ हैं। लॉकडाउन का मकसद कोरोना वायरस को शिकस्त देना है। मुआशी परेशानी का शिकार सिर्फ मजदूर तबका नहीं बल्कि छोटे कारोबार से वाबस्ता सफेद पोश तबका भी है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और नवाबों के शहर की सौगात भी मजेदार हैं। बहावलपुर के सोहन हलवे और पकौड़ों के दूर दूर तक चर्चे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। नवाबों के शहर बहावलपुर की सौगात भी मजेदार है। यहाँ के सोन हलवे और पकौड़ों की धूम दूर तक है। शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर 5 BC पर मजेदार पकौड़े हर वक्त दस्तयाब हैं। शहरी चटपटे पकौड़े खाने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। मैं बहावलपुर से स्पेशल जो है ना ये पकौड़े, क्योंकि यहाँ की सौगात है हमारे बहावलपुर की, तो मैं स्पेशल जो है ना ये 15 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पकौड़े खाने के लिए आया हूँ। यहाँ के पकौड़े में क्या खास बात है? दुकानदार का कहना था कि वो सिर्फ खालिस बेसन और मसाले डालते हैं, इसलिए पकौड़ों की धूम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का भैया, जो अल्लाह पाक ने रिज़्क़ दिया है मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश तो यही करते हैं खालिस चीज बनाए, अच्छी चीज दें इंसान। छुट्टी होती है तो मैं उस दिन जो है वो यहाँ पर आता हूँ जब मेरा वीक ऑफ होता है। तो टेस्टी हैं, मुनफरिद हैं पकोड़े यहाँ के, और इनकी इनफरादियत ये है कि इनका जो टोटल मटेरियल होता है वो घर से बनाते हैं। मैं पिछले कोई 12-14 साल से इनसे पकोड़े खाता हूँ तो बहुत मजा आता है। आज भी खालिस अशिया की कदर है, इसलिए शहरी दूर दूर से यहाँ आते हैं। भूख भी हो और सफर भी लंबा हो तो इस दुकान के पकोड़े दिल को बहुत लुभाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।